लिख लीजिए आज प्रिकॉशंस of income method or precautions which are necessary while calculating national income through income method. Precautions necessary. Following precautions are necessary while estimating national income through income method. Through income method. What are the precautions necessary while estimating national income through income method? कौन कौन सी चीजों का एहतियात रखना है, ख्याल रखना है, हमें होशियारी रखनी है when we use the income method for calculating the national income of a country. Precaution is we have write down for value added method, we have to write down the precaution is for income method, and जब expenditure method आएगा तो उसमें भी precautions जरूरी है. So what are the precautions necessary, which are the basic, you can say cautioners, in which fields, in which areas we have to remain very cautious while using the income. First precaution is the income from sale of second-hand goods. The income from sale of second-hand goods. Income from sale of second-hand goods should not be included in national income. Should not be included in GDP or national income. ये समझ आ गया point? Do you get this point? मैंने आपको ये last lecture में 2 or 3 days before, for example, एक कार तैयार हो गई in 2019 और ये सेल इसकी हो गई for 3 लाख रुपीस. 3 लाख में एक कार प्रोड्यूस हो गई और सेल हो गई. A company has sold a car for 3 lakh rupees in 2019 और ये A person ने ले ली. A is a person who bought a car from the company for rupees 3 lakh. जब हमने GDP उस वक्त का 2009 का एस्टिमेट किया, we have included these 3 lakh rupees in the GDP of 2009. Do you get my point? When we estimate the national income of India in 2019, we have included this car in the GDP of 2019. जब हमने नेशनल इनकम इंडिया का कैलकुलेट किया तो 3 लाख यह भी उसमें आ गई. For example, in 2020, this B has sold this car, A has sold this car to B as second hand. एक साल इसने इसको चलाया, फिर ये कार इसने B को बेच दी. He sold it to B for rupees, for example, 2 lakh. For example, for 2 lakh. अब ये कार second hand बन गई. ये कार, now this car is second hand. Now this precaution says us that this 2 lakh rupees should not be included in the national income of the country for the year 2020. 2020 का national income जब हम GDP of this country for 2020 calculate करेंगे तो उसमें ये 2 लाख हम include नहीं करेंगे, because this car has already been included in the national income of 2019. So that is why first caution is we should not include the income earned from sale of second-hand goods. The income earned from sale of second-hand goods should not be included in GDP of the country.
फर्स्ट। सेकंड प्रिकॉशन है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर पेमेंट्स, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर पेमेंट्स, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक old age pensions, scholarships, unemployment compensation, yes, unemployment compensation, etc. should not be included in national income, etc. should not be included in national income or GDP. Because why? Why? Because it is non-productive income. It is non-productive. It should not be included in national income because these are non-productive income. It is one-sided payment. It is not in this transaction. No goods and services are produced. No service is made or no goods are produced. इसी तरह number 3, income from illegal activities, illegal activities, जो इनकम इलीगल एक्टिविटीज से आता है, लाइक स्मगलिंग, थेफ्ट, ओके, गैम्बलिंग, पता है गैम्बलिंग क्या है, ज़ोर, एटसेट्रा. So all types of income which are earned from illegal activities should not be included. ये भी हमें जरूरत नहीं है. Should not be included in national income or GNP or G, whatever you call it. Number next is, वैसे ये मुझे यहाँ ही डिस्कस करना था, सेकंड हैंड गुड्स का इनकम इंक्लूड नहीं करना है. सेकंड हैंड गुड्स से जो इनकम हमें आएगा वो हमें इंक्लूड नहीं करना है. बट द कमीशन पेड टू द एजेंट्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, समझ आता है मैं क्या कहता हूं. अगर ए के पास एक गाड़ी है, ए इज अ पर्सन, ही हैज अ कार, he sold it to B, he sold it to B, A and B do not meet personally. जब ट्रांजैक्शन होती है सेकंड हैंड गुड्स की, बेचने वाले को खरीदने वाला का पता ही नहीं चलता है कौन खरीदना चाहता है. तो एक एजेंसी है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन सी हु इज buying second hand goods and selling second hand goods. This C person buys this car from A, for example for rupees 2 lakh. 2 लाख हेम एस निश कार, यह कनान यमिस बीएस, यह कनान बीएस. ए डायरेक्टली कनान बीएस कहें, सी कनान ए कनान सीएस, सी कनान बीएस. फॉर एग्जांपल यह 2 लाख हेम, यह 2 लाख तो 10,000 कनान. एमिस कोता बनियाव, एमिस बनियाव 10,000. सीन हेत एस निश कार 2 लाख, कयन बीएस कतिस 2 लाख तो 10,000. एमिस कोता बनियाव, एमिस बने 10,000. बने 10,000. इकोनॉमिक्स वन कि नम 10,000 करू तु इनक्लूड नेशनल इनकम मज, यह कमीशन. हम 2 लाख में करू कहें मगर कमीशन जोन तू सा इनक्लूड. द कमीशन earned by the agents of second hand goods, the agents of second hand goods should be included in GDP. ये कमीशन इनकम जो इसने कमीशन कमाया, द एजेंट्स who are dealing with the second hand. इसी तरह नंबर 5 आप लिख लीजिए, all unpaid services, all unpaid services, वो सर्विसेज, वो काम जिनको हम पे नहीं करते हैं. अथर घर में काम करती है, मकान दुआन, बीस त्रावान, घर बंद छालान किचनस मज,
Do your parents pay you? No, sir. No. No, sir. Your mothers work in kitchens, in kitchen gardens. बाहर Yes, sir. वो kitchen garden होता है आपको. वायरे में शु काम करना तो. Do your parents or do your owners of the household, do you pay? No, sir. You are not paid. So all those services which are not paid, all unpaid services, जिनके लिए पे नहीं किया जाता है, like services of housewives, services of housewives, hobbies, income earned from hobby, etc., should not be included. Should not be included in GDP. GDP में ये include मत करो. Okay? इसी तरह income earned from financial transactions, very important. Income earned from financial transactions, like sale of shares, bonds, debentures should not be included. Should not be included in GDP. इनको GDP में include मत करो. But एक चीज इसमें include करना है. The brokerage earned by brokers of shares. Brokerage. The brokerage earned by brokers of shares should be included. Should be included in और national income. ये कितने हो गए? 7 हो गए. इसी तरह रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग वो इंक्लूड करना है. ये हो गया ऊपर वाला रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स, इम्प्यूटेड रेंट जिसको हम कहते हैं. इम्प्यूटेड रेंट जो मैंने आपको कह दिया कि अगर मैं अपनी बिल्डिंग खुद इस्तेमाल करता हूं तो उसका एस्टिमेट करना है कि रेंट कितना आ गया इसका. दैट शुड बी इंक्लूडेड. इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग should be included. Should be included. Okay. इसी तरह गवर्नमेंट सब्सिडी शुड बी एक्सक्लूडेड. जिस तरह ट्रांसफर पेमेंट हमने एक्सक्लूड किया, इसी तरह गवर्नमेंट सब्सिडी. दिस इज वन साइडेड पेमेंट. गवर्नमेंट सब्सिडी should be excluded. Should be excluded. इसी तरह है बहुत सी चीजें हैं जो इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो एक्सक्लूड कर रहे हैं. तो और एक चीज जिसमें कंफ्यूजन हमें होता है हमेशा, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, प्रॉफिट के हमें बहुत से किस्म है. एक है डिविडेंड जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. दूसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. इसी के साथ है कॉर्पोरेट टैक्स. The tax imposed on undistributed profit, that's called a corporate tax. If whole profit is included in national income, then we do not need to add separately dividend, undistributed and corporate tax. अगर हमने already सारे प्रॉफिट को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया, then there is no need to add dividend, undistributed profit and corporate tax separately. If we have not included profit as a whole in the national income, then we have to include dividend,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स सेपरेटली इन द नेशनल इनकम। इसका क्या पॉइंट बनेगा? पॉइंट इसका ये बनेगा, द कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और ऑल कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। द डिविडेंड्स, undistributed profit, distributed profit, and corporate tax. These are the all parts of components of tax in this profit, corporate tax, or all components of corporate tax. Corporate tax, corporate profit. Once profit is included, अगर हमने profit को include किया, once profit is included in GDP, in national income, हेलो जी, कोई क्वेश्चन मत है? इन 10 पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन अंडरस्टैंड किया होगा, आई होप। Yes, sir. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। कोई क्वेश्चन मत है? No, sir. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा काम दे दूंगा घर के लिए। आप वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आप घर में देखोगे। आपने इनकम मेथड पढ़ा है, कल मैंने पढ़ाया आपको इनकम मेथड, परसों वीडियो भी मैंने डाला है। इनकम, थ्रू इनकम मेथड वी एड अप द इनकम अर्नड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। वी डिवाइड द होल इनकम इनटू three groups: wages and salaries, which is called a compensation of employees. Compensation of employees first, second is operating surplus, and third is mixed income. अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लिख लीजिए। given the following data, given the following data, ये असाइनमेंट है आपके लिए। using income method, using income method, given the following data, using income method, calculate
calculate. Number first, net domestic product. A net सर तुम म्यूट थोमत अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? हेलो 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 अब आ रहा है आपको आवाज? आवाज आ रही है आपको? यस सर Yes, अब sir. आई अब लिखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ये चीजें क्या क्या कैलकुलेट करना है? चलो मैं ये थोड़ा चेंज करूंगा इसमें। कैलकुलेट आपको डोमेस्टिक इनकम करना है, नेशनल इनकम करना है। नंबर फर्स्ट डोमेस्टिक इनकम एंड नंबर सेकंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये है जीडीपी, ये समझो जीएनपी। आइटम्स क्या क्या है? आइटम्स एंड अमाउंट इन रुपीज इन करोड़। नंबर फर्स्ट वेजेस, नंबर सेकंड रेंट, नंबर थर्ड इंटरेस्ट, नंबर फोर्थ डिविडेंड, नंबर फिफ्थ है मिक्सड इनकम। इसी तरह सिक्स्थ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नंबर सेवेंथ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इसी तरह नंबर 8 है कॉर्पोरेट टैक्स। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं देखूंगा आपने कितना इनकम मेथड समझा है। ये है 10,000 करोड़ वेजेस, 10,000 करोड़, ठीक है। रेंट ऑफ लिख लीजिए 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, 400 करोड़, 3,000 करोड़, डिविडेंड 3,000 करोड़, 400 करोड़, मिक्सड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सॉरी और योर एस
10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 14 करोड़, 3,000 करोड़, 14 करोड़, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 करोड़, 200 करोड़, इसी तरह यह है 400 करोड़, 400 करोड़, and this is also 400 crores, and this is 1,000 crore. So these are the data given to us. आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. So हमने इनकम मेथड में पढ़ा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस व्हाट? मिक्स्ड इनकम. अगर जीएनपी से हम माइनस करेंगे ये नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड तो हमारा बनता है जीडीपी. जब हम जीडीपी इंक्लूड करेंगे, जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा आएगा. जब जीएनपी करेंगे तो ये सारा आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट. इसके प्रिकॉशंस और मैं देखूंगा कि किस हद तक आप ये क्वेश्चन करोगे. ठीक है? ओके, कोई क्वेश्चन मत है? सर नंबर करू ऐड ग्रुप्स मगन. कुछ नंबर सर मे कोरमुत व्हाट्सएप पे सेंड. करू सेंड. सर मे कोर ऑथर पेठन ते वकेनस ते कोरम. अच्छा अच्छा. तो सूजी में बेस तो कर ऐड नाउ क्या छते तसे में नाउ तो बे सब्जेक्ट से नाउ क्लास सब्जेक्ट. ओके यस सर. नाउ क्लास सब्जेक्ट सूजी से उस नंबर से ऐड छी करो तिमी नंबर पे सूजी है उसी नंबर पे. यस सर मैं थैंक यू वेरी मच.